अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे अपने लास्ट टॉपिक में मैंने पोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करवाया हुआ था और फर्स्ट पोल्यूशन जो है डैट इज़ एयर पोल्यूशन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। एयर पोल्यूशन सारी मैंने आपको एयर पोल्यूशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनसे एयर पोल्यूशन जो है या एयर पोल्यूटेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटे, फिर आगे उसके इफ़ेक्ट्स, फिर उसके कंट्रोल जो हैं वो हमने डिटेल से पढ़े थे। आज हमने नेक्स्ट पोल्यूशन स्टार्ट करनी है, डैट इज वाटर पोल्यूशन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटे? हम लोग वाटर पोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। वाटर पोल्यूशन पेज नंबर 138 आप ओपन करें। इट इज़ द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय एडिंग एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। वाटर पोल्यूशन severely affect the health of people. Sewage is one of the major pollutant of water. It contains organic matter and the excreta of human and other animals. Organic matter encourages the growth of microorganisms which spread diseases. The waste of industries, acid, alkalis, dyes, and other chemicals are disposed in nearby water bodies. These waste changes the pH of water and are harmful or even fatal to aquatic organisms. Certain industrial release a lot of hot water from cooling plants. It results in heating up of water bodies and kill aquatic life. Fertilizers and pesticides enter into the water bodies with the rain, water flow, and the groundwater by seepage. These chemicals remain in water for a long time and can enter food chain. They cause a number of diseases in animal, oil tanker, and offshore petroleum refineries cause oil leakage in water. Oil float on water surface and prevent atmospheric oxygen from mixing in water. So aquatic animals began to die due to oxygen shortage. Some heavy metals like lead, mercury, arsenic, and cadmium also make the water polluted. Such metal can be present in the water released from industrial and urban areas. If water with such heavy metal is given to plant, the metal enter the vegetables and grow on these plants. Such contaminated vegetables are harmful for human health. Heavy metal reduce growth and development, cause cancer and nervous system damages. Mercury and lead can cause joint diseases such as rheumatoid arthritis and diseases of kidney, circulatory system, and nervous system. Effect of water pollution. The following are the major effect of water pollution. Eutrophication. Enrichment of water with inorganic nutrient, nitrates and phosphate is called eutrophication. The sewage and fertilizer contain large amount of inorganic material, nutrients. When sewage and fertilizer reach water bodies, the nutrient present in them promote algal blooms, excessive growth there. Rich algal growth lead to increase in the number of decomposer. Decomposer use the oxygen present in water and result in the depletion of oxygen. Algal bloom also reduce the light reaching the low layers in water. Number 2 effect is food chain contamination. The non-biodegradable water pollutant may stay in water for a long time. For water, they enter into small organisms which are fed upon by fishes. The fish in turn are fed up by land animals including humans. Epidemics. Other organic pollutant in water facilitate the growth of germs. Such polluted water cause epidemic like cholera and gastroenteritis, etc. Control of water pollution. Public should be made aware of danger of water pollution before releasing the sewage into water bodies. It must be purified through sewage treatment techniques. Industrial water should also be treated before बेटे लास्ट लाइन पे हूँ मैं. Industrial waste should also be treated before they are released into water bodies. अभी जो टॉपिक मैंने रीड किया है डैट इज वाटर पोल्यूशन. व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? बेटे कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में ऐड होके वाटर की कंपोजिशन को चेंज कर दे और इसको हार्मफुल बना दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूटेंट कहते हैं.
यानी कि क्या हुआ, मैंने क्या कह दिया कि वाटर के अंदर वाटर की कंपोजिशन क्या थी, H2O थी ना, 2:1 थी। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस मिल जाता है वो इसकी कंपोजिशन को चेंज कर देता है और इसको हार्मफुल सब्सटेंस में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर पोल्यूटेंट कहेंगे। और वाटर पोल्यूटेंट जो है वो वाटर पोल्यूशन काज करेंगे। वाटर पोल्यूशन जो है इसके बहुत ज़्यादा स्वेयर इफेक्ट्स हैं ह्यूमन की हेल्थ पे। सीवेज इज़ वन ऑफ द मेजर, कौन सा मेजर, मैंने बताया सीवेज। सीवेज क्या चीज़ है, इसमें बेटे ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमन बीइंग के वेस्ट प्रोडक्ट्स और दूसरे एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो शामिल होते हैं। किसमें, सीवेज में। सीवेज की बात मैं कर रही हूँ कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के वेस्ट जो हैं वो शामिल होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है ये इनकरेज करता है बेटे, इन्हांस करता है किसकी प्रोडक्शन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन को। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन से क्या होता है, बहुत सारी डिजीजेज जो हैं वो स्प्रेड होती हैं। ऑर्गेनिक जो इसके अलावा ये तो सारा हो गया सीवेज, यानी कि सीवेज का जो वेस्ट है सारा वो सारा कहाँ जाता है, वो सारा वाटर के अंदर जो है वो डायरेक्ट जाता है। इसके अलावा बहुत सारा वेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट में आपके पास एसिड आते हैं, एल्कलाइज आते हैं, डाइज आते हैं और बहुत सारे केमिकल्स आते हैं। ये भी डायरेक्टली जो है वाटर ही के अंदर जो है वो डिस्पोज किए जाते हैं। ये सब चेंजेस जब ये स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ की बात हमने की है, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या करते हैं, ये वाटर की पीएच जो है वो चेंज कर देते हैं। ये वेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ के बेटे होते हैं ये ज़्यादातर जो है एसिडिक इन नेचर होते हैं और ये क्या करेंगे, ये वाटर की पीएच को चेंज कर देंगे। वाटर की पीएच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर आपके पास हो गया। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि जो सीवेज है, सीवेज भी जो है वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सीवेज जो है और जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है ये क्या करते हैं बेटे, ये आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रह रहे हैं, इक्वेटिंग है, उनको ख़राब कर देंगे। उनकी कंडीशन को जो है वो क्या कर देंगे, वाटर की कंडीशन चेंज कर रहे हैं ना, उसका पीएच चेंज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो पानी में इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको जो है ये उनके लिए ख़तरनाक हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने कूलिंग प्लांट वो होते हैं ना जो कन्वर्ट करते हैं हॉट चीज़ों को कूलिंग में। तो वो क्या करते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है कि बेटे वो जो हॉट वाटर या हॉट गैसेस होती हैं वो डायरेक्टली वाटर के अंदर जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। जब ये वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं तो ये वाटर बॉडीज़ क्या हैं कि वो एनिमल्स और वो प्लांट जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं ये उनको क्या करते हैं, हीट अप कर देते हैं। इसी तरह बहुत सारे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स बेटे ये भी वाटर के अंदर जो हैं ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा आपने कल एसिड रेन पढ़ा था, एसिड रेन भी जो है वाटर के अंदर ऐड हो जाती हैं और वाटर की कंपोजिशन को कम्प्लीटली ये सब कुछ चेंज कर देगा। उसके बाद हमने बहुत सारे और इसके पढ़े कि मैंने आपको क्या बताया, अभी हमने पढ़ा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वाटर की कंपोजिशन को चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि जब इंडस्ट्रीज़ अपना केमिकल वेस्ट सारा वाटर में बेटे डाल देती हैं तो ये केमिकल जो हैं ये वाटर में काफ़ी अरसा रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या किया कि वही वाटर जो वहाँ पे प्लांट्स थे जो एक्वेटिक लाइफ में थे उन्होंने लिए, वहाँ से फिशेस ने लिए, फिशेस से फिर उनको फर्स्ट कंज्यूमर ने लिया, फर्स्ट को सेकंड ने लिया, सेकंड को टर्शियन लिया। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि बेटे ये सारा जो वेस्ट हार्म था, जो केमिकल्स थे डेंजरस, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे से तीसरे में जो है ये कन्वर्ट होते गए और इसने सबको इफेक्ट किया। इसके अलावा एक और मेन काज है वाटर पोल्यूशन का, वो कौन सा है, ऑयल टैंकर एंड ऑफ शोर पेट्रोलियम है। ऑयल टैंकर क्या करते हैं, कभी कभार उनकी जो रिफाइनरीज हैं यानी कि जो पेट्रोलियम जहाँ पे स्टोर होता है ना, बड़े बड़े टैंकर्स हैं, ये पानी के थ्रू यानी कि सी के थ्रू या ओशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो है ये ट्रांसफ़र होता है ऑयल। तो क्या होता है, कभी कभार इनके अंदर लीकेज हो जाता है और सारा का सारा जो पेट्रोल है वो क्या हो जाता है, वो वाटर की सरफेस में जो है आना शुरू हो जाता है। जब वाटर की सरफेस में पेट्रोल या डिफरेंट टाइप के और ऑयल आते हैं तो वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है, और फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। अब जब वाटर के ऊपर एक लेयर बन जाती है किसकी, पेट्रोलियम की या किसी और ऑयल की, तो वो ऑक्सीजन को नीचे डीपली जाने नहीं देती, एक लेयर बना लेती है ना। तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही रह जाता है उस लेयर की वजह से, ठीक है।
तो जो इक्वेटिक एनिमल्स ये हैं या जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और अल्टीमेटली वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है ऑक्सीजन की और उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। इसी तरह आगे आपके पास आ जाते हैं कुछ हैवी मेटल्स हैं जैसे कि लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है। ये तमाम के तमाम वाटर को पोल्यूटेड करते हैं, ये तमाम के तमाम वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ से आते हैं सारे मेटल्स बेटे? ये आते हैं आपकी फैक्ट्री से आते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज अपना डिस्चार्ज जो है वाटर में सारे फेंक रहे होते हैं और सारे के सारे जो हैं ये वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि जो कल्टीवेशन की जाती है, जो प्लांट्स या वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं वो भी यहीं से वाटर जो है अपने प्लांट्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो जब ये वाला यानी कि जो हैवी वाटर है जिसके अंदर हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं, जब ये वाटर जो है ये प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को जो दिया जाता है और जो प्लांट इस वाटर से ग्रो करते हैं बेटे वो वेजिटेबल्स क्या होती हैं, वो कंटेमिनेटेड होती हैं क्योंकि उनको वो पानी दिया जाता है जिसके अंदर हैवी मेटल्स प्रेजेंट थे। जब ये वाले वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ह्यूमन बींग्स खाते हैं तो ये हैवी मेटल्स हमारे अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हमें बहुत सारी जो है हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आते हैं। हैवी मेटल जो है ये हमारी ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं, हमारी डेवलपमेंट को रिड्यूस कर देते हैं और बहुत सारी डिजीज़ जिसमें कॉमन जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एंड कैंसर जो है उसको स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा जो है इसकी रेशो है किसकी, हैवी मेटल्स की। मरकरी और लेड की एग्जांपल आपकी दी हुई है। मरकरी और लेड जो है ये जॉइंट डिजीजेस जैसे कि आर्थराइटिस की एग्जांपल दी हुई है और दूसरी किसकी एग्जांपल है, किडनी की। सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो है ये काज करते हैं कौन, हैवी मेटल्स। कौन कौन से, मरकरी और लेड, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन? द फॉलोइंग आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के 3-4 जो हैं वो मेजर जो हैं वो इश्यूज हैं कि क्यों जो है वो वाटर पोल्यूशन जो है वो काज हो रही है, ठीक है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। वाटर पोल्यूशन की वजह से जो मेन इफ़ेक्ट्स होते हैं बेटे, अब मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहला इफ़ेक्ट जो वाटर इफेक्ट जो है जो वाटर पोल्यूशन की वजह से काज होता है, डैट इज़ यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है बेटे? जब वाटर जो है उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन या अमाउंट जब पानी के अंदर, वाटर के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। किसकी? 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। जब इनकी कंसंट्रेशन पानी में, वाटर में ज़्यादा हो जाएगी तो उस प्रोसेस को, उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, यूट्रॉफिकेशन उसको कहते हैं। ये क्या चीज़, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो मैंने आपको 2 बताए हैं ये क्यों ज़्यादा होते हैं जब वाटर में बेटे, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करके आई थी वाटर पोल्यूशन, वहाँ पे मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी, एक था सीवेज वेस्ट और एक था फर्टिलाइज़र। जब फर्टिलाइज़र और सीवेज जो है एक ही वाटर में बहुत ज़्यादा उनका डिस्चार्ज होगा तो ये आपका जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन है ये उस वाटर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो ये दोनों हैं इनकी प्रेजेंस में क्या होगा कि एलजी जो एल्गल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब एल्गल ग्रोथ पानी में बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से डिकम्पोजर्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिकम्पोजर जो है ऑक्सीजन, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है ना बेटे वो लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो है कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ जाता है। ऑक्सीजन के अंदर डिप्लेशन यानी कि ऑक्सीजन खत्म होना शुरू होती है। जब ये ऑक्सीजन खत्म होगी तो वाटर के अंदर और भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जिसमें से लार्ज ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं हमारे पास, फिशेस आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिशेस हैं, टर्टल हैं, स्नेक्स हैं, अकानोडर्मेटा के तमाम ऑर्गेनिज्म भी जो है वो वाटर ही में रहते हैं। तो ये क्या होगा कि उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। इन द रिज़ल्ट क्या होगा कि तमाम के तमाम इक्वेटिक एनिमल की जो है वो फिर डेथ होना शुरू हो जाएगी और जब उनकी डेथ होगी तो आपकी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ जो सारी मैंने पढ़ाई है ये सारी आपका पहला इफेक्ट आता है जो कि हमने क्या पढ़ लिया, यूट्रॉफिकेशन, यानी कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा हो जाना पानी के अंदर। दूसरी चीज़ जो दूसरा इफेक्ट है डैट इज़ फूड चेन
कंटेमिनेशन। अब जब वाटर के अंदर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर जो है ये वाटर में मतलब आ जाता है। अब अगर कोई भी वेस्ट वाटर के अंदर आ गया तो वो बाहर तो निकल ही नहीं रहा, बाहर निकलने का तो कोई मैकेनिज्म है नहीं, सारा का सारा वेस्ट वाटर के अंदर ही काफ़ी अरसे तक, लॉन्ग टाइम तक वाटर के अंदर ही रह रहा है। तो क्या हो जाता है ये ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर हैं वो इन्हीं से ही फिर आगे जो है उनकी सारा प्रोसेस होता है, यही पानी उनके अंदर जाता है। ये पानी पोल्यूटेड वाटर है ना, इसके अंदर सीवेज वेस्ट है, इसके अंदर फर्टिलाइजर्स हैं डिफरेंट टाइप के। तो क्या होता है कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं और जो फिशेस हैं वो इसी पानी से यही पानी उनके अंदर जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या है कि जो बड़ी फिशेस हैं वो छोटी फिशेस को ईट अप कर रही हैं और जो बड़ी फिशेस हैं उनको ह्यूमन बीइंग ईट अप कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि ये तमाम के तमाम हैवी मेटल्स, ये तमाम कंटेमिनेटेड जो सीवेज था और जो और वेस्ट थे वो सारे के सारे फूड चेन में फूड चेन के जरिए जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जो है वो ट्रांसफर होते जाएंगे। यानी कि पहले प्लांट्स में गया, प्लांट से स्मॉल फिशेस से जो है बड़ी फिशेस को ह्यूमन बीइंग ने ऐड कर लिया। तो हमारे अंदर भी फिशेस के जरिए ये तमाम का तमाम जो पोल्यूटेंट थे, वाटर पोल्यूटेंट थे, ये सारे के सारे जो है हमारे अंदर जाना शुरू हो गए। और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि हमें बहुत सारी डिजीजेज जो हैं बेटे वो हो जाती हैं। यानी कि ये तमाम की तमाम फूड चेन को कंटेमिनेट कर देती है, ख़राब कर देती है। नेक्स्ट आपका इफेक्ट आता है एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या है कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर ये ऐसी मतलब एक कंडीशन जो है वो कॉज करते हैं। यानी कि ये कंडीशन फेवरेबल होती है किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, यानी कि जर्म्स की ग्रोथ के लिए। जो ये वाला वाटर है, जो पोल्यूटेड वाटर है, ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल होता है। वहाँ पे जर्म्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो रही होती है और बहुत तेज़ी से हो रही होती है। किसमें? पोल्यूटेड वाटर में। और ये पोल्यूटेड वाटर जो है ये बहुत तरह का एपिडेमिक जो है वो काज कर देता है। एपिडेमिक का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारियां जो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को हिट कर देती हैं। तो फिर हम उसको कहते हैं कि क्या आ जाता है? एपिडेमिक आ जाता है। जैसे कि कॉमन एग्जांपल इसकी कॉलरा है और गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये दोनों स्टमक डिजीज़ हैं। और जब उस एरियाज़ में जितने भी लोग होते हैं जो भी इस वाटर पे मतलब यही पानी अपनी खुराक में ले रहे हैं, यही पानी पी रहे हैं, यही इसी पानी की फिशेस खा रहे हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे रहने वाले उस एरिया में जितने भी लोग हैं बेटे वो सब के सब जो है फिर इस डिज़ीज़ का जो है उनको तेज़ी से ये स्प्रेड होती है। एक कोई दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, पूरी पॉपुलेशन जो है उसको कॉलरा जो है वो हो जाता है। और ये दोनों डिजीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, कॉलरा और गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये दोनों डिजीज स्टमक डिजीज़ हैं। इसमें आपको वॉमिट्स और जो है मोशन जो है वो डायरिया जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट आपका आता है कंट्रोल। नेक्स्ट इफेक्ट तो हमारे ये तीन ही हमने पढ़ लिए थे। फिर आगे आया था कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो वाटर पोल्यूशन है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिनसे वाटर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। सबसे पहला तो क्या है कि जो पब्लिक है, जो हमारी आम पब्लिक है, उसको क्या दिया जाए? उसको जो है ऐसे हमें नॉलेज दिया जाए, ऐसे उनको चीज़ें दी जाएं कि बताया जाए उनको कि ये सब कुछ जो है ये उनकी हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं जिसमें लोगों को जो है वो इन चीज़ों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया जाए। फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को जो है इस चीज़ से अवेयर किया जाए कि वो अपना वेस्ट जो है वो वाटर में डायरेक्टली जो है वो थ्रो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी सीवेज ट्रीटमेंट्स बनाया जाएंगे जो सीवेज वेस्ट है जो घरों का या डिफरेंट जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है उनका जो सीवेज वेस्ट है वो डायरेक्ट वाटर में ना जाए, बल्कि डिफरेंट टाइप के डिस्पोजल प्लांट्स बनाए जाएं जहाँ पे उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए और उनको जो है उनका पूरा ट्रीटमेंट करके और जो है उसमें से सीवेज अलग किया जाए और साफ़ जो पानी हो वो डायरेक्टली जो है वो सी में जो है वो फिर छोड़ा जाए। इसी तरह मतलब ये तीन मेन चीज़ें हैं। एक तो सीवेज वाटर को कंट्रोल किया जाए, उसके लिए डिस्पोजेबल प्लांट्स बनाए जाएं। फिर नेक्स्ट है फैक्ट्रीज़ का वेस्ट जो है वो डायरेक्टली उसमें जो है वो थ्रो ना किया जाए। एंड सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है? पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक को, जो लोग हैं वहाँ, उनको अवेयर किया जाए इस सारे इम्पैक्ट से कि वाटर पोल्यूशन से क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं। तो हमने जो है वाटर पोल्यूशन पूरा पढ़ लिया। वाटर पोल्यूशन के जो मैंने मेन जो मेजर पोल्यूटेंट्स थे, सीवेज था और दूसरा आपके पास फर्टिलाइजर्स थे, वो हमने पढ़े, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि हैवी मेटल्स इनके अंदर होते हैं जैसे कि लेड और मर्करी, आर्सेनिक, कैडमियम है।
ये क्या कॉज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स को। और फिर इन प्लांट्स को अगर हम ईट अप करें तो फिर हमें भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, वो सारी हमने पढ़ी। इन द एंड हमने इफेक्ट पढ़े। इफेक्ट में हमने 3 मेजर इफेक्ट्स पढ़े, यूट्रोफिकेशन और फूड चेन कंटेमिनेशन, एंड थर्ड वन इज एपिडेमिक्स, ये हमने पढ़े। इन द एंड हमने कंट्रोल पढ़ा कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं, उनको भी हम लोग रीड आउट करते हैं। देयर आर मोर देन 200 tanneries industries where raw skin is treated to make leather operating in Kasur city. The industry discharged 9,000 cubic meter of wastewater daily into the nearby water bodies. This water contained heavy metal and became a part of underground water. In 2003, a survey showed that 2/3 of residents and 72% of tannery workers suffered cancers, infection, edema, kidney, or loss of eyesight. Tests showed that the drinking water was contaminated with lead, mercury and chromium. The Pakistan government and the United Nations Development Program UNDP launched that Kasur Tannery Pollution Control Project. The project has established an effluent treatment plant, chromium plant and a solid waste disposal sites. ये यहाँ पे एक नोट आपको दिया हुआ है, एक आपको परसेंटेज बताई हुई है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं बेटे जिनको टेनेटरीज कहते हैं। टेनेटरी जो है ये वो इंडस्ट्री है जिसमें क्या होता है कि रॉस जो स्किन है एनिमल्स की उसको जो है ट्रीट किया जाता है, उससे जो है वो लेदर बनाया जाता है, यानी कि सिंपल आप उसको लेदर इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। और ये पाकिस्तान के शहर कसूर में जो है इस तरह की जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो काम कर रही हैं। कंबाइनली दे आर नॉन एज टेनीरीज, ठीक है, यानी कि ये लेदर प्रिपेयर करती हैं ये इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज बेटे डेली की बेस पे 9,000 क्यूबिक मीटर वेस्ट जो है वो पानी में डिस्चार्ज करती हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर हैवी मेटल्स जो हैं वो जाते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो हैवी मेटल्स हैं ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि हैवी मेटल्स से उस पानी से जब हम वही पानी प्लांट को दिया जाता है तो वो प्लांट और वो वेजिटेबल जब हम ईट अप करते थे तो हमें भी बहुत सारी डिजीज़ेज होती थी, जिनमें से कॉमन जो था वो मैंने आपको अर्थराइटिस और दूसरा किडनी और कैंसर जो है वो बताया था, मरकरी और लेड की वजह से जो हो रहा था। तो ये एक कैलकुलेशन थी कि रूटीन की बेस पे डेली बेसिस पे 9,000 क्यूबिक मीटर वेस्ट जो है वो वाटर में डायरेक्टली जा रहा था, जिसकी वजह से हैवी मेटल 2003 में बेटे 2003 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2/3 ऑफ रेजिडेंट्स एंड 72% ऑफ टैनरी वर्कर्स, ठीक है, कितना बताया 2/3 ऑफ रेजिडेंट, यानी कि उन इंडस्ट्रीज़ के इर्द गिर्द जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी वहाँ के रहने वाले लोग जो है वो 2/3, और जो इस इंडस्ट्री में टैनरी वर्कर्स जो इस लेदर इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो जो 72% वो ये तमाम के तमाम कैंसर से, किडनी के इन्फेक्शन से और लॉस ऑफ आईसाइट से इफ़ेक्टेड थे। ये कैलकुलेशन थी 2003 की, यानी कि इस इंडस्ट्री ने वहाँ के जो पीपल हैं जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा हिट किया, और वो 72% जो है वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो बेटे इससे जो है वो इफ़ेक्ट हुए, उनको कैंसर हुआ, उनको इन्फेक्शन हुआ, किसके किडनीज के इन्फेक्शन, और उनकी आईसाइट जो है वो चली गई, यानी कि उनकी जो है आई से रिलेटेड और भी बहुत सारे इश्यूज थे लेकिन वो जो है ब्लाइंड हो गए। और इसके अलावा जो वहाँ पे इर्द गिर्द जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी थी, जितने भी वहाँ के रेजिडेंट्स थे, उनके भी 2/3 जो हैं वो इन तमाम बीमारियों से हिट हुए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट किए गए, और टेस्ट से ये बात भी जो है सामने आई, टेस्ट के रिजल्ट ये आए कि जो लोग ये कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, यानी कि जिसमें जो है ये जो डिफरेंट टाइप की जो लेदर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या इसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जो आ रहे हैं पानी के अंदर, जो लोग ये पानी ले रहे थे एज ए देयर डाइट, अपनी खुराक में ये वाला पानी यूज़ कर रहे थे, बेटे इस पानी में लेड, मरकरी और क्रोमियम के जो हैं वो हैवी मेटल्स जो हैं वो पाए गए। और आपको पता है मैंने पहले ही बताया था कि लेड और मरकरी जो है ये बहुत डेंजरस है और ये बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैलाती है, ठीक है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम है UNDP, बेटे एक प्रोग्राम है वो कसूर जो टैनरी इनकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री है वहाँ पे लॉन्च किया। UNDP, यू मीन यूनाइटेड, एंड फॉर नेशन, D फॉर
डेवलपमेंट MP फॉर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में इस पोल्यूशन से रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स बनाए गए, ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जिससे जो है इस चीज़ को जो है इस पूरी जो लेदर इंडस्ट्री है इसमें ऐसी प्रिकॉशंस रखी जाए, ऐसे वेस्ट बनाए जाएं कि जो इनका वेस्ट है, जो हैवी मेटल्स का वेस्ट है स्पेशली, वो पानी में डायरेक्टली जो है वो ना फेंका जाए, बल्कि ऐसे जो हैं प्लांट्स बनाए जाएं जिसमें इन हैवी मेटल्स को पहले ट्रीट किया जाए और जो है उसके अलावा इसके यहाँ पे क्या है कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट्स बनाई जाएं जहाँ पे सारा का सारा वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट है वो डिस्पोज किया जाए, पानी के अंदर डायरेक्ट ना किया जाए। ठीक है, तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसी चीज़ें थी जिनको अगर हम लोग कार्ड लाते हैं, सामने लाते हैं, अगर इनके ऊपर हम अमल करते हैं तो हम लोग जो है वो वाटर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक उसकी परसेंटेज को रिड्यूस कर सकते हैं। क्या 2-3 चीज़ें थी बेटे, एक तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट्स बनाई जाएं जहाँ पे सारा का सारा सॉलिड वेस्ट जो है उसको वहाँ पे जो है वो स्टोर किया जाए और बाद में डिफरेंट मेथड यूज़ करके उसको जो है डिस्पोज ख़त्म कर दिया जाए। सेकंड क्या था कि इस तरह के ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएं जहाँ पे जो ये हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि आपके पास लेड आता है, क्रोमियम है, उनको जो है वहाँ पे ट्रीट किया जाए, वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और जो है उनको डायरेक्ट वाटर में जो है वो ना उनको थ्रो किया जाए। तो बेटे आज का टॉपिक जो है ये हमने वाटर पोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट पोल्यूशन दैट इज़ लैंड पोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पर मैं अपना टॉपिक ख़त्म कर। अल्लाह हाफ़िज़ 10th क्लास।